Good evening, everyone. Welcome back to the weekly webinar cum training session of Rajlakshmi Solutions Private Limited. On behalf of Rajlakshmi team, I would like to welcome all the attendees here. Myself, Anagha, representing Rajlakshmi Solutions Private Limited. Today here we are going to talk about the payroll in Tally Prime. So before moving ahead to the today's topic, let's have a small introduction of Rajlakshmi Solutions. So we are into the multiple segments, that is sales, services, solutions, implementations, and developments. We are also into the multiple softwares. First is Tally Prime, second is SAP Business One, third is Bittrex 24 CRM, and fourth is Skill India. So now moving ahead with the today's topic. So now the speakers are here. So the presentation will be done by Miss Pinaj. So Pinaj, are you here? Yes, ma'am. Okay. And the live demonstration will be done by Mr. Aniket. So Aniket, are you here? Yes, ma'am. And the resource person, Mr. Bhagwati Dhandaria. So are you here? Yeah, Anuga, yeah, I'm available over here. Okay. Thank you. Hearty welcome all of you. So now I request Pinaj and Aniket to move ahead with your presentation. Hello, good evening all. Myself Pina Sheikh, representing on behalf of Rajlakshmi Solution Private Limited. On behalf of the management and the entire team of Rajlakshmi Solutions, I would like to welcome all the participants present here. So moving ahead to our today's topic is payroll management in Tally Prime. So first we will see what is payroll. Payroll management is by which an employer can manage the salaries of the employees. It includes salary, allowances, deduction, and net payable to the employees. It also deal with the generation of pay slip. पेरोल एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर एम्प्लॉयर के अपॉइंट किए हुए एम्प्लॉयज की हर एक इंफॉर्मेशन को मेंटेन किया जाता है और एम्प्लॉयर द्वारा दिए गए रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बिहाफ में कंपनी जो एम्प्लॉय को पे करती है उसे पेरोल कहा जाता है. नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ पेरोल इन टैली प्राइम. A payroll is an important process that calculates payroll accurately in compliance with taxing authority. The simplicity and effectiveness of payroll system provide great advantages to organizations. Those processes allow easy management of employee salary, wages, taxes and other deduction. पेरोल एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है. ये प्रोसेस में एम्प्लॉय के सैलरी, वेजेस, टैक्सेस एंड अदर डिडक्शन को आसान तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं. द गवर्नमेंट लीव्स payroll taxes on wages and self-employment income and uses the revenue to fund social security, Medicare and other social insurance program. गवर्नमेंट लीव और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम पेरोल टैक्स लगाती है. सोशल सिक्योरिटी एंड अदर सोशल इंश्योरेंस प्रोग्राम फंड देने के लिए पेरोल का यूज किया जाता है. पेरोल taxes have become an increasingly important part of the government budget over time. पेरोल टैक्सेस समय के साथ गवर्नमेंट बजट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन गए हैं. इट इज नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे फीचर ऑफ payroll management. It is fully integrated with accounts to give the benefit of simplified payroll processing and accounting की benefit देने के लिए अकाउंट के साथ पूरी तरह से इंटीग्रेटेड है. It has user defined classification and sub classification for comprehensive reporting. This may be related to the employee group, pay component, department, etc. इसमें कॉम्प्रहेंसिव रिपोर्टिंग के लिए यूजर डिफाइंड क्लासिफिकेशन एंड सब क्लासिफिकेशन है ये एम्प्लॉय ग्रुप, पे कंपोनेंट, डिपार्टमेंट के रिलेटेड हो सकता है. इट प्रोवाइड द फैसिलिटी टू क्रिएट यूजर डिफाइंड अर्निंग एंड डिडक्शन पे हेड. ये यूजर द्वारा अर्निंग एंड डिडक्शंस पे हेड क्रिएट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. इट अलाउज flexible and user definable criteria for simple and complex calculation. ये simple और complex calculation के लिए flexible and user defined criteria की permission देता है. It allows the ultimated grouping of payroll master.
ये पेरोल मास्टर के अनलिमिटेड ग्रुपिंग के परमिशन देता है। It supports user-defined production unit, that is attendance, production, time-based remuneration units. ये user-defined production unit, for example attendance, production, time-based remuneration units का support करता है. It provides a flexible payroll processing period. ये flexible payroll processing period provide करता है. It provide comprehensive cost center as well as employee wise costing reports. ये comprehensive cost center के साथ साथ employee wise costing report provide करता है. It ensure an accurate and timely salary processing, employee statutory deduction and employer statutory contribution with the help of predefined processes. ये टाइम पर एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन एंड एम्प्लॉयर स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन इंश्योर करता है. इट प्रोवाइड ऑटोफिल फैसिलिटी टू एक्सपेंडेड द अटेंडेंस, पेरोल एंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन प्रोसेस. ये अटेंडेंस, पेरोल एंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन प्रोसेस में तेजी लाने के लिए ऑटोफिल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. इट फैसिलिटेट an accurate computation and deduction of income tax, ESI, EPF, professional tax, gratuity, etc. ये income tax, ESI, professional tax, etc. की accurate computation and deduction की facility provide करता है. It helps in the generation of statutory form and challan for income tax, EPF and ESI as prescribed. ये income tax, EPF, ESI के लिए स्टैट्यूटरी फॉर्म और चालान बनाने में मदद करता है. It allows drill down facility to voucher level for any kind of alteration. ये किसी भी टाइप के अल्टरेशन के लिए वाउचर लेवल पर ड्रिल डाउन की फैसिलिटी की परमिशन देता है. It help in tracking employee loan details. ये एम्प्लॉय लोन को ट्रैक करने में भी मदद करता है. Now it's time for the live demonstration. So I request Ankit sir to proceed ahead. Thank you. Yes, thank you, Pinaz ma'am. That was a nice presentation from you. Is my screen is visible, ma'am? Yes, it's visible. Hello. Good evening, everyone. My name is Aniket Chavan, presenting from Rajlakshmi Solution Private Limited. जैसे कि पिनाज मैम ने आपको एक्सप्लेन किया है पीपीटी, अब हम टैली में पेरोल प्रोसेस प्रैक्टिकली कैसे होता है, कैसे हम उसे प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं टैली में, वो हम प्रैक्टिकली टैली में देखने वाले हैं आज. तो सबसे पहले मैं पेरोल का फीचर एक्टिवेट करने के लिए उसका फीचर इनेबल करना पड़ता है टैली में, जो कि हमें F11 में मिलता है. F11 में यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया है मेंटेन पेरोल, इसे हमें इनेबल करना है. इसे इनेबल करने के बाद सेकंड यहाँ पे ऑप्शन दिया है इनेबल पेरोल स्ट्रेटजी. इसे जैसे हम इनेबल करते हैं, यहाँ पे कुछ ऑप्शन हमें दिखते हैं जो कि कंपनी डिटेल यहाँ पे हमें मिलती है. ये हमें वो प्रॉपर फिल करना है. ये हमें प्रॉपर जैसे फिल करते हैं तो जब भी हम पीएफ का पेरोल का जो भी हम चलन जनरेट होता है टैली में से, उस समय ये प्रॉपरली वहाँ पे फिल होके आ जाता है. नेक्स्ट जैसे हम पेरोल का एक्टिवेशन करते हैं F11 से, यहाँ पे हमें यहाँ पे क्रिएट मास्टर्स में एक पेरोल मास्टर्स का ऑप्शन मिलता है क्रिएट करने के लिए. तो सबसे पहले हमें उस मास्टर क्रिएट करना है, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट की है. मैं आपको दिखा देता हूँ. सबसे पहले यहाँ पे आता है एम्प्लॉय ग्रुप. एम्प्लॉय ग्रुप इन द सेंस एम्प्लॉय की एक कैटेगरी आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं. जैसे किसी कंपनी में एडमिनिस्ट्रेशन एक का ग्रुप होता है, एक R&D सेल्स टीम होती है, R&D टीम होती है, सेल्स टीम होती है, एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है. ऐसे अलग अलग तरीके के आप कैटेगरी एम्प्लॉय के मेंटेन कर सकते हैं उसके ग्रुप वाइज. नेक्स्ट यहाँ पे आता है एम्प्लॉय. एम्प्लॉय में यहाँ पे हमें एम्प्लॉय का नाम डालना है, उसका वो कौन से कैटेगरी में आता है, कौन से डिपार्टमेंट में आता है, डिपार्टमेंट वाइज उसे बाइफरकेशन देना है.
उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, वो कंपनी में कब से ज्वाइन हुआ है, एम्प्लॉय की ओवरऑल डिटेल यहाँ पे आपको आप मेंटेन कर सकते हैं, जैसे उसकी जनरल इन्फॉर्मेशन, उसका नंबर, एम्प्लॉय नंबर कौन सा है, उसकी डेजिग्नेशन, फंक्शन, लोकेशन, उसका डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप, एक जनरल इन्फॉर्मेशन, उसकी स्टैट्यूटरी इन्फॉर्मेशन, उसका पैन नंबर, पीएफ अकाउंट नंबर, ईपीएस नंबर, ये सब आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। और अगर आपको चाहिए तो आप उसका वीजा पासवर्ड की अगर आप डिटेल मेंटेन करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे उसे मेंटेन कर सकते हैं। इस तरीके से हमें सभी एम्प्लॉय का यहाँ पे नाम के साथ उसके पूरी डिटेल के साथ हमें क्रिएट करना है। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट आता है यूनिट वर्क्स। यूनिट हम किस लिए यूज करते हैं, जैसे किसी चीज को हमें कुछ मेजर करना है तो मेजर हमें उसे कुछ मेजरमेंट में मेजर कर सकते हैं। जैसे हम किसी नंबर्स को नॉस में वगैरह मेंटेन कर सकते हैं केजी में, तो किसी एम्प्लॉय की हम वर्किंग को हम मेंटेन उसे मेजरमेंट कर सकते हैं उसके मिनट में और आवर्स में। तो मैंने यहाँ पे यूनिट क्रिएट किया है आवर्स का, और सेकंड यूनिट यहाँ पे क्रिएट किया है मिनट्स का, और थर्ड यूनिट यहाँ पे मैंने क्रिएट किया है और एक कंपाउंड यूनिट है। जैसे किसी कंपनी में ओवर टाइम भी कैलकुलेट होता है सैलरी में, तो उसके लिए ये वाला यूनिट हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप। किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी डिफाइन करने के लिए हम उसकी अटेंडेंस सबसे पहले मेंटेन करते हैं, जो कि उससे मेंटेन करने के लिए हमें प्रॉपर यहाँ पे अटेंडेंस टाइप क्रिएट करना जरूरी है। जैसे उसका प्रेजेंट डेट, प्रेजेंट डेज, एब्सेंट डेज, और उसका ओवर टाइम कितना है। ये तीनों चीजों पे बेसिस पे हम उसकी अटेंडेंस मेंटेन करके सैलरी डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट आता है पे हेड्स का। पे हेड्स में कंपनी जो एम्प्लॉय को फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है या फिर जो डिडक्शन कंट्रीब्यूशन जितना भी हो रहा है वो कौन से बेसिस पे हो रहा है, वो क्या हो रहा है, कितना परसेंट हो रहा है, वो सभी आपको यहाँ पे हेड्स क्रिएट करना है। उसकी बेसिक सैलरी कितनी है, उस सभी का आपको यहाँ पे हेड क्रिएट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है बेसिक पे, उसका बेसिक सैलरी कितना है, ये कंपनी के लिए, ये जो बेसिक सैलरी है कंपनी के लिए, अर्निंग ऑफ एम्प्लॉय उसका कंपनी के लिए एक्सपेंस है। ये फिक्स सैलरी है तो यहाँ पे फिक्स भी आप रख सकते हैं। अगर वेरिएबल सैलरी होती है कंपनी में तो वेरिएबल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जो फैसिलिटी कंपनी एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर रही है वो सभी के आपको यहाँ पे हेड क्रिएट करने हैं, जिसे हम पे हेड कहते हैं पेरोल में। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं डिफाइन सैलरी। तो इसके बाद नेक्स्ट हम किसी भी सभी एम्प्लॉय का उसकी सैलरी डिफाइन करना है। इसी के बेसिस पे हम इसका पेरोल वाउचर बुक कर सकते हैं, और इसी के बेसिस पे हम उसे सैलरी पूरी जो ओवरऑल आती है उसकी वो हम दे सकते हैं एम्प्लॉय को। तो कंपनी को जो गवर्नमेंट की तरफ से जो यहाँ पे हेड लगे हुए हैं वो हेड यहाँ पे सेलेक्ट करना है, और कौन से एम्प्लॉय को वो कौन सी फैसिलिटी देना चाहते हैं वो हमें यहाँ पे सेलेक्ट करके उसका परसेंटेज डालना है। उसकी बेसिक सैलरी कितनी है, उसका अगर कोई हाउस रेंट HRA कोई प्रोवाइड कर रहा है उस एम्प्लॉय को तो वो कितना है, कितना परसेंटेज है, वो सभी हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है उसके प्रॉपर सैलरी कैलकुलेशन करने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे एक एम्प्लॉय का यहाँ पे मैंने डाला है मनोज करके। ये सभी का हमें इसका बेसिक सैलरी, उसका डिडक्शन कितना होता है, कंट्रीब्यूशन उसका कितना आ रहा है, वो सभी हमें यहाँ पे मेंटेन करना है। नेक्स्ट आते हैं पेरोल वाउचर टाइप। पेरोल वाउचर टाइप में यहाँ पे सबसे पहले पेरोल वाउचर टाइप हमारा फर्स्ट पेरोल वाउचर है अटेंडेंस का, जो कि आपको अदर वाउचर में अटेंडेंस का आप यहाँ पे पेरोल वाउचर में ऑप्शन मिलता है, इसे सेलेक्ट करना है। अटेंडेंस में मंथ एंड में यहाँ पे अटेंडेंस आपको बुक करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे 13 सितंबर 2018 लिया है। किसी भी एम्प्लॉय का यहाँ पे आपको अटेंडेंस डालना है, जिससे हर कंपनी में उसकी एब्सेंटी, उसके प्रेजेंटी वाइज उसकी सैलरी डिफाइन होती है।
तो जस्ट मैं यहाँ पे कंसिडर करते हैं इसके एब्सेंट वाइज हम ऐसे सैलरी ये करते हैं, अटेंडेंस मेंटेन करते हैं। ये कितना इसमें 30 सितंबर को यहाँ पे मैंने अटेंडेंस बुक कर रहा हूँ। यहाँ पे जैसे आप एम्प्लॉय सेलेक्ट करते हैं उसका नंबर ऑटोमेटिकली आ जाता है। आप एब्सेंट वाइज अगर मेंटेन करते हैं तो यहाँ पे एब्सेंट लेना है। वो इस मंथ में कितने दिन एब्सेंट था वो जस्ट यहाँ पे डेज डालने। नेक्स्ट आते जाके ये एब्सेंट था, इस महीने में 2 दिन एब्सेंट था। फॉर एग्जांपल इसने 2 दिन तो केश 2 दिन एब्सेंट था, विपिन 1 दिन एब्सेंट था। तो उनके एब्सेंट की अटेंडेंस बेसिस पे हम उसकी सैलरी डिफाइन कर सकते हैं। इसे मैं सेव कर देता हूँ। नेक्स्ट वाउचर टाइप आता है पेरोल का, जो कि यहाँ पे उसका शॉर्टकट कीज भी दिया है, कंट्रोल F4। इसे सेलेक्ट करना है। इसे जैसे ओपन करते हैं हम, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया जाता है ऑटो फिल का। जो हमने कॉन्फ़िगरेशन किया है मास्टर्स में, उस कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे डायरेक्टली उसकी सैलरी कितनी मंथली कितनी सैलरी उसकी आती है, उसका पीएफ कितना पीएफ और उसका ईएसआई कितना आता है, वो सब ऑटो फिल में डायरेक्टली कैलकुलेट होके आ जाते हैं। आपको मैनुअली यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं पेरोल ऑटो फिल। यहाँ पे प्रोसेस लिस्ट का ऑप्शन आता है, हम क्या प्रोसेस कर रहे हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ सैलरी। जिस भी मंथ की हम सैलरी में उनकी प्रोसेस कर रहे हैं वो मंथ आपको यहाँ पे पीरियड डालना, मंथ पीरियड। लेकिन इससे पहले इस मंथ में उसकी अटेंडेंस का वाउचर बुक होना जरूरी है, जो कि हमने ऑलरेडी इससे पहले किया है पहले वाले वाउचर में। यहाँ पे ऑल एम्प्लॉय का अगर आपको करना है तो ऑल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। पर्टिकुलर एम्प्लॉय की अगर आपको सैलरी दिखानी है तो वो भी हम यहाँ पे एम्प्लॉय वाइज कर सकते हैं। जैसे मैंने हर एम्प्लॉय की अटेंडेंस यहाँ पे मेंटेन की है, तो मैं यहाँ पे ऑल आइटम ले लेता हूँ। और यहाँ पे सैलरी है तो सैलरी पेएबल में आएगा। सभी एम्प्लॉय की सैलरी यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गई है। यहाँ पे नरेशन भी इसका ऑटोमेटिक आ जाता है, एक कौन से मंथ की सैलरी है इसकी, और इसे हम एक्सेप्ट कर दें। नेक्स्ट आते हैं ईएसआई। उसका ईएसआई कंट्रीब्यूशन इस मंथ में कितना रहा है वो हम यहाँ पे इसे सेलेक्ट करेंगे। मंथ पीरियड डालना है यहाँ पे ऑल आइटम लेके। ईएसआई पेएबल में यहाँ पे लेजर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे ईएसआई आ जाता है। ये प्रॉपर तभी आता है जब आपका कॉन्फ़िगरेशन लेजर में मास्टर में प्रॉपर किया अगर होगा आपका अपने, तो वो प्रॉपर यहाँ पे आ जाते हैं। इसे सेव कर देते हैं। इसी तरीके से उसका पीएफ का भी उसका कंट्रीब्यूशन का भी आ जाता है। और एनपीएस कंट्रीब्यूशन किसी एम्प्लॉय का है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट इसे हम एट अ टाइम यहाँ पे हम उसके अटेंडेंस, उसके पेरोल जितने हमने पास किए एंट्रीज, वो हम डे बुक में देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं पेरोल रिपोर्ट में। पेरोल रिपोर्ट में नेक्स्ट यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आता है पे स्लिप का। पे स्लिप में यहाँ पे हम अगर किसी एम्प्लॉय का पर्टिकुलर एम्प्लॉय का अगर देखना है तो एम्प्लॉय वाइज भी देख सकते हैं। अगर सभी एम्प्लॉय का हमें पे स्लिप निकालना है एक साथ, तो वो भी हम यहाँ से ऑल आइटम करके ले सकते हैं। ऑल आइटम मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे किया है। यहाँ पे स्लिप की प्रिंट आप देख सकते हैं। सभी एम्प्लॉय की यहाँ पे पे स्लिप उस मंथ की, सितंबर मंथ की आपको देखने को मिल जाती है। अगर आपको सिंगल एम्प्लॉय का देखना है, यहाँ पे मैंने अशोक का सेलेक्ट किया। उस एम्प्लॉय का यहाँ पे और जो बेसिक डिटेल है उसकी टैक्सेशन डिटेल है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। उसको वो सितंबर मंथ में यहाँ पे मेंशन किया करके आपको मिलता है पे स्लिप फॉर सितंबर 2018। वो इस मंथ में कितने दिन एब्सेंट था, कितने दिन प्रेजेंट था, उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, डिडक्शन कितना है, उसकी सैलरी बेसिक सैलरी कितनी है, वो सभी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में आपको जो भी कुछ डिटेल आपको चाहिए या फिर कुछ रिमूव करना है तो वो भी आप यहाँ पे F12 में से ऐड कर सकते हैं या फिर कुछ रिमूव भी कर सकते हैं।
जैसे यहाँ पे वर्टिकल पे स्लिप का भी ऑप्शन दिया है, जैसे आप यहाँ पे इनेबल करते हैं इसे तो आपको ये रिपोर्ट वर्टिकली शो होती है। नेक्स्ट आता है पे शीट में। पे शीट एक कॉलमनर रिपोर्ट मिलती है आपको, पर्टिकुलर सभी एम्प्लॉयज के उसका डिडक्शन कंट्रीब्यूशन कितना हुआ है, कैसे हुआ है, वो सभी आपको यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे कोई कॉलम आपको ऐड करना है, कोई रिमूव भी करना है तो वो भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जो भी आपको कॉलम इसमें चाहिए वो सभी आपको आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं और उस कॉलम को आप देख सकते हैं, वो एक ही विंडो पे सभी एम्प्लॉय का। इसका टोटल वो प्रेजेंट कितने दिन प्रेजेंट था, एब्सेंट कितने दिन था, उसका डिडक्शन कंट्रीब्यूशन, उसके हिसाब से उसका टोटल नेट अमाउंट सैलरी नेट अमाउंट कितना आता है, वो सभी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ये भी हम एक एक एम्प्लॉय का भी यहाँ पे देख सकते हैं। ऑल एम्प्लॉय का देखना है तो वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है अटेंडेंस शीट। यहाँ पे सभी एम्प्लॉय का हम यहाँ पे वो एट अ टाइम एक ही विंडो पे उसकी मंथली अटेंडेंस देख सकते हैं। कौन सा एम्प्लॉय इस मंथ में कितने दिन प्रेजेंट था, कितने दिन एब्सेंट था, वो सब हम यहाँ पे देख सकते हैं इस रिपोर्ट में। नेक्स्ट है पेमेंट एडवाइस। अगर आपने किसी एम्प्लॉय की सैलरी भी पेड की है तो वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। पेमेंट एडवाइस में कौन से अकाउंट से डायरेक्ट पेमेंट हुआ है, कौन से अकाउंट में पेमेंट क्रेडिट हुआ है, वो भी हमें यहाँ पे पर्टिकुलर एम्प्लॉय का देखने को मिल जाता है पेमेंट एडवाइस में। नेक्स्ट है एम्प्लॉय विदाउट ईमेल आईडी। किसी एम्प्लॉय की अगर ईमेल आईडी मेंटेन नहीं है, क्योंकि हमें उसे हर मंथ में एम्प्लॉय को पे स्लिप मेल करनी पड़ती है किसी किसी कंपनी को, तो अगर किसी का ईमेल आईडी कॉन्फ़िगर नहीं किया है, आपने फिल नहीं किया, तो वो भी एम्प्लॉय आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आप उसकी ईमेल आईडी फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है पेरोल स्टेटमेंट। पेरोल स्टेटमेंट में हमें पर्टिकुलर हेड वाइज उसका कितना हेड, पूरे हेड की डिटेल मिलती है। जैसे अब तक ये जो हेड का है, ये कौन से एम्प्लॉय का कितना कितना वेजेस आपका यहाँ पे कैलकुलेट हुआ है, वो सब डिटेल हमें पर्टिकुलर हेड वाइज मिल जाती है। ईएसआई पेएबल टोटल इस मंथ में इस मेंबर का 29 हुआ है, विपिन का 38 हुआ है, वो हम पर्टिकुलर हेड वाइज हम यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। स्टैट्यूटरी में हम यहाँ पे उसकी तो पूरी टैक्सेशन की डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। समरी में आपको पूरी डिटेल मिल जाती है। जैसे मैंने यहाँ पे सितंबर का डाला है, यहाँ पे मैंने डालता हूँ अप्रैल से डालता हूँ। अप्रैल से पूरा ओवरऑल सभी हेड्स का यहाँ पे पेएबल अमाउंट आपको देखने को मिल जाती है। कितने आपको पेएबल अमाउंट पेड करनी है, उसका ईएसआई, सभी एम्प्लॉय का ईएसआई कितना आपको पेड करना बाकी है, पीएफ कितना पेड करना बाकी है, वो आपको एक ही विंडो पे आपको सब मिल जाता है। प्रोविडेंट फंड, इसका भी आपको फॉर्म 5, फॉर्म 10, फॉर्म 12 मंथली स्टेटमेंट जो हम निकालते हैं पेरोल का, वो सभी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं चलन। ये मंथली स्टेटमेंट भी आप टैली में से निकाल सकते हैं। इस तरीके से टैली में से आपको स्टेटमेंट मिल जाता है। फॉर्म 3 भी आप इसमें निकाल सकते हैं। सभी एम्प्लॉय का अलग अलग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ईएसआई भी आप इसमें स्टैट्यूटरी में देख सकते हैं, फॉर्म 3। इसका भी आपको प्रिंट आपको इस तरीके से देखने को मिल जाता है। ईएसआई का भी आपको मंथली स्टेटमेंट जो देना होता है हर मंथ में, मंथ एंड में, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसके आप यहाँ से डायरेक्टली प्रिंट निकाल के सबमिट कर सकते हैं। फॉर्म 5 और फॉर्म 6 ईएसआई का, वो भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं।
ये फॉर्म 5। नेक्स्ट है पीटी। पीटी का भी आप यहाँ पे मंथली स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। कंपटीशन रिपोर्ट भी आप यहाँ से देख सकते हैं सभी एम्प्लॉय की। उसके बाद नेशनल पेंशन स्कीम ग्रेचुइटी इनकम टैक्स भी आप यहाँ पे रिपोर्ट देख सकते हैं एम्प्लॉय वाइज। टोटल उसका कंट्रीब्यूशन रिडक्शन उसके हिसाब से सभी आप यहाँ पे इनकम टैक्स के रिपोर्ट में देख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे पेरोल रजिस्टर। पेरोल रजिस्टर में जितने भी पेरोल के वाउचर है, एक अटेंडेंस का और पेरोल का, वो सभी आपको यहाँ पे मंथ वाइज देखने को मिल जाते हैं। तो आप उस वाउचर को देख के उसके प्रिंट वगैरह आपको निकालनी है तो आप यहाँ से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अटेंडेंस रजिस्टर। अटेंडेंस भी आपको यहाँ पे वाउचर आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली। आपके टोटल जो अटेंडेंस वाउचर आपने बुक की है यहाँ पे आप मंथ वाइज आपको देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एम्प्लॉय प्रोफाइल। यहाँ पे सभी एम्प्लॉय की प्रोफाइल आपको देखने को मिल जाती है। उसका एम्प्लॉय नंबर, जो भी आपने एम्प्लॉय में आपने जो उसकी डिटेल जो डाली है वो सभी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। उसका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, उसका नंबर, पीएफ नंबर, ईपीएस नंबर, उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग कब की है। यहाँ भी आप अगर आपको कोई कॉलम ऐड करना है या फिर कोई रिमूव करना है, यहाँ से भी आप एफ12 में से रिमूव कर सकते हैं, फिर ऐड कर सकते हैं। एम्प्लॉय हेड काउंट। अभी यहाँ पे सभी एम्प्लॉय का टोटल उसके हेड को कौन कौन से हेड वहाँ पे उस पे एप्लीकेबल है जो कि कंपनी को लागू होते हैं, वो सभी हम यहाँ पे इस रिपोर्ट में देख सकते हैं। So that's it from my side. Thank you. Okay, thank you, Pinaj and Aniket, for your wonderful presentation. So it's time for a overview of the today's session. It's over to you, Bhagwati sir. Yeah, thank you, Anga. Thank you, team. So myself is Bhagwati Jhanjaria from Rajya Lakshmi Solutions Private Limited. So as usual, you know, every Saturday we are taking a session according your demand and according your requirements की क्या exactly आप लोगों को चाहिए, उसके हिसाब से जो requirements आपकी आती है उसके बेस पे हम ये सेशन का सब्जेक्ट डिफाइन करते हैं। So today session is payroll management. Payroll management is a very critical for the any of the organization. It's a very simple but very critical. It's a very simple क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आपके पास टैली प्राइम है तो it's a very simple for the manage the payroll in your organizations. So मैं यहाँ आपको एक बात जरूर बोलूंगा कि आज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर मल्टीपल टाइप ऑफ स्टाफ है, मल्टीपल टाइप ऑफ डिपार्टमेंट है और इसके साथ साथ मल्टीपल कंप्लाइंस, जो आज के पेरोल में कंप्लाइंस जो आपको पीएफ, ईएसआईसी, ग्रेच्युटी, मल्टीपल स्कीम्स, ये जो चीजें हैं वो सभी चीजों को एक साथ मेंटेन कर पाना और उसके हिसाब से उसके कैलकुलेशन करना, इट विल टेक टू मच टाइम और उसके बाद में भी मिस्टेक होने की चांसेस बहुत ज्यादा होती है अगर आपके पास एक प्रॉपर सिस्टम नहीं है तो। बट टैली प्राइम में जहां आपने देखा है कि पेरोल बहुत पावरफुल पेरोल है, जहां पर आप पूरे एम्प्लॉय का मैनेजमेंट कर सकते हैं, पूरे एम्प्लॉय की प्रोफाइल मैनेजमेंट कर सकते हैं, साथ साथ उसको कैटेगराइज कर सकते हैं, डिपार्टमेंट वाइज उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। और एक अच्छी बात यह है कि आप डिपार्टमेंट वाइज कॉस्ट भी आप देख सकते हैं कि किस एम्प्लॉय का हमारे कौन से डिपार्टमेंट में हमारा कितना कॉस्टिंग हो रहा है, पर्टिकुलर लाइक different type of the expenses, different type of allowance and different type of the salaries. ये एक एनालिसिस के लिए काफी अच्छा हो जाता है। नेक्स्ट मैं आपको इसमें बात करूंगा कि अटेंडेंस आपको डेली आपको ऑटोमेटिक यहाँ कैलकुलेट हो जाती है, क्योंकि आप अपनी अगर मान लीजिए बायोमेट्रिक्स मशीन है आपके पास तो यू ऑल्सो वांट टू इंटीग्रेट, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल, यू कैन इंटीग्रेट विद द थ्रू द स्मॉल कस्टमाइजेशन इन द टैली। तो आपको अटेंडेंस भी मैनुअल करने की जरूरत नहीं है। अगर आप मैनुअल करना चाहें तो बाई डिफॉल्ट यू कैन डू द मैनुअल, यू वांट टू इंटीग्रेट डेफिनेटली कस्टम करवा सकते हैं आप और वो इंटीग्रेट हो जाएगी। नेक्स्ट हम आएंगे कि अब ये पेरोल का जो मैनेजमेंट है, अब हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा होती है। कॉम्प्लेक्सिटी किस मायने में ज्यादा होती है कि आज की डेट में कस्टमर हमारे पास, आज हमारा जो एम्प्लॉय है कुछ कॉन्ट्रैक्ट पे है, कुछ एम्प्लॉइज परमानेंट है, कुछ एम्प्लॉइज टेम्पोररी है, कुछ एम्प्लॉइज आवरली बेसिस पे काम कर रहे हैं, कुछ एम्प्लॉइज के
ओवर टाइम्स भी हो रहा है। ये हर टाइप के सिनारियो में आपका मैनेजमेंट यहाँ पर हो जाता है, जिसके लिए आपको कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। नेक्स्ट, अब ये चीजों को जब हम एक बार अटेंडेंस वगैरह रिमार्क कर लेते हैं तो सिंपली आप एक सिंगल क्लिक पे आप पेरोल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही आप मंथली पेरोल क्रिएट करते हैं, सेम टाइम में आपके मल्टीपल टाइप ऑफ द रिपोर्ट्स जो कंप्लाइंस है वो अपडेट हो जाते हैं। इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं, फॉर्म 16 यहाँ से आप जनरेट कर पाते हैं, और साथ साथ एज पर द इनकम टैक्स नॉर्म्स जो डिक्लेयर वैल्यू एम्प्लॉय ने दी आपको, उस डिक्लेरेशन के बेस पे वहां पर इनकम टैक्स टीडीएस वगैरह डिडक्शन होते हैं। अगर डिक्लेरेशन वैल्यू नहीं दी हुई है तो डायरेक्टली आपका पेरोल नॉर्मल डिडक्शन पे हो जाता है। सो टीडीएस का भी कोई चैलेंजेस नहीं आता है। इसके साथ साथ पीएफ ईएसआईसी के जो भी चलान्स है वो डायरेक्टली यहीं से आप अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट, आप पे शीट यहाँ से डायरेक्टली जनरेट कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप यहाँ से पेमेंट एडवाइस जनरेट करके डायरेक्टली बैंक को भेज सकते हैं, और एक सिंगल क्लिक पे पेमेंट एडवाइस जनरेट होती है, चाहे आपके 1000 एम्प्लॉय हो या 10 एम्प्लॉय हो, वो पे शीट डायरेक्टली बैंक को आप भेजेंगे विद द चेक, और यू कैन अपलोड द पे स्लिप पे शीट। अगर आपने बैंक ने आपने फैसिलिटी ली हुई है तो एक्सेल को डायरेक्ट अपलोड कर लीजिए, बैंक ऑटोमेटिक आपका पेमेंट डिसबर्समेंट कर देगी उन पर्टिकुलर एम्प्लॉइज को। सो ये सभी चीजों को काफी इजी गोइंग आप हैंडल कर सकते हैं। जहां पर नॉर्मल सिनेरियो में हमने देखा है जहाँ 100 एम्प्लॉइज का स्टाफ है, वहाँ 2 से 3 दिन पेरोल मैनेजमेंट में जाते ही जाते हैं। उसके बाद में भी कुछ ना कुछ एरर्स हैं, बग्स आते हैं, तो ह्यूमन इंटरवेंशन एकदम खत्म हो जाता है इसमें। और इसके साथ साथ एडवांटेज ये है कि ऑन टाइम सैलरी हो पाती है, ऑन टाइम आप चीजों को कर पाते हैं, आपका टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं होता, और सबसे बड़ा एडवांटेज आपका डेटा आपके पास टैली में होता है। आप 5 साल 10 साल के बाद में भी आप चाहें कभी भी एक्सेस करना चाहें, वो आप डेटा एक्सेस करके चेक कर सकते हैं कि हमने कब कौन सा टाइम में किस एम्प्लॉइज के साथ क्या ट्रांजेक्शन किए थे। और पीएफ ईएसआईसी एंड एवरी कंप्लायंस की जो रिपोर्ट्स है वो आप कोई भी टाइम आप वहां से निकाल सकते हैं। तो दिस इज अ बिग एडवांटेज ऑफ द पेरोल, जहां पर आप टैली में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और इस इंप्लीमेंट से रिलेटेड अगर आपको कोई सपोर्ट लगता है तो डेफिनेटली आप हमारी कंपनी के जो भी लोग कनेक्टेड आपके साथ हैं, जो अकाउंट मैनेजर आपके साथ कनेक्टेड है, उनके साथ आप डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे चैटबॉट, अभी जूम के चैटबॉट में आप देखेंगे ऑलरेडी हमने नंबर्स डाल के रखे हुए हैं सपोर्ट के, आप उस पर कॉल कर सकते हो। और इसके साथ साथ यहाँ पर मेरा भी नंबर है, यू कैन ऑल्सो कॉल मी, I can also advise you कि how to implement that payroll and what is the advantage of that payroll. I think you understand. और इसके साथ साथ आपका YouTube का चैनल का हमने यहाँ पर लिंक डाल के रखा हुआ है। जो YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब अगर करेंगे तो हमारी जितनी भी वेबिनार और ट्रेनिंग सेशन हो रहे हैं, ये सभी ट्रेनिंग सेशन हमारे YouTube अपकमिंग वीक में YouTube चैनल पे हम लोग अपलोड करते हैं। इससे एक एडवांटेज क्या होता है, हमारा YouTube चैनल आज की डेट में लोग उसको ट्रेनिंग के लिए यूज करते हैं, एज ए अकेडमी यूज होता है, जहां पर लोग टैली की ट्रेनिंग के लिए अपनी कंपनी में हमारा YouTube चैनल सिंपली सब्सक्राइब करते हैं। जो भी टॉपिक उनको देखना है वहां पर हमारा पूरा का पूरा प्रैक्टिकल वीडियोस एंड थ्योरेटिकल प्रेजेंटेशंस जो आपने आज देखा उससे वहां पर मिल जाता है, जिससे आपका कोई भी एम्प्लॉय कोई भी टॉपिक को आराम से लर्न कर सकता है और आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं विदाउट इन्वेस्ट एक्स्ट्रा टाइम ऑन दिस पर्टिकुलर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स। सो आपको जब चाहिए जब यूट्यूब में खोल करके आप अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं और एडवांटेज ले सकते हैं, जिससे आपका काम काफी स्मूथर एंड हेजल फ्री हो जाता है और आपका नॉलेज भी अपडेट हो जाता है। तो दिस इज एडवांटेज ऑफ आवर यूट्यूब चैनल। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लिंक अभी आपके चैट बॉक्स में डाल के रखा हुआ है, अभी आप इमीडिएट कर लें, क्योंकि इसके बाद आपको ये लिंक यहाँ से चूंकि वेबिनार खत्म होने के बाद आपको मिलेगा लिंक। सो दिस इज ओवरऑल आइडिया ऑफ द सेशंस एंड इसके अलावा टाइम टू टाइम हमारे काफी ऑफर्स वगैरह चलते रहते हैं। जैसे इस मंथ में हमारा जो ऑफर चल रहा है जो काफी हॉट प्रोडक्ट है व्हाट्सएप इन टैली प्राइम। आप कोई भी व्हाट्सएप कोई भी रिपोर्ट्स, कोई भी आउटस्टैंडिंग स्टेटमेंट्स या इनवॉइस या ट्रांजैक्शन जो भी आपके पीडीएफ आप जनरेट कर रहे हैं वो सभी आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कस्टमर के साथ आप शेयर कर सकते हैं, जिसका आपको काफी बड़ा एडवांटेज होता है, आपका टाइम सेविंग होता है और आपको वहां पर आज की डेट में 50% का काफी अच्छा ऑफर है। इसके अलावा टैली क्लाउड आप काफी लोग यूज कर रहे हैं। टैली क्लाउड यू कैन यूटिलाइज टैली ऑन द क्लाउड, कहीं से भी कहीं एनीवेयर एंड एवरीवेयर यू कैन यूज दैट टैली इन द आवर टैली क्लाउड्स।
तो वेरियस टाइप ऑफ द प्रोडक्ट्स में हम डील कर रहे हैं, जिसका एडवांटेज आप ले सकते हैं। और इसके अलावा आपको जो भी रिक्वायरमेंट्स आपके हिसाब से आती है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप हमें शेयर कर सकते हैं, उसके हिसाब से हम आपको कस्टमाइज करके भी दे सकते हैं। और ये जितने भी सेशंस हमारे होते हैं, ये आपके डिमांडेड टॉपिक के हिसाब से होते हैं। अगर आपके पास कोई भी टॉपिक आपके दिमाग में है, आपके माइंड में है कि हमें ये टॉपिक होना चाहिए, इस टॉपिक पे डिमांड अगला सेमिनार होना चाहिए, तो यू कैन ऑल्सो अपडेट टू अस, सो वी कैन टेक दिस टॉपिक इन द अपकमिंग वेबिनार, अपकमिंग ट्रेनिंग सेशंस, जिसके एडवांटेज आप सब लोगों को इसको मिलेंगे। So this is overall idea of these things. So that's it from my side, Anga. You can carry on, please. Thank you so much, sir, for your valuable time. So if anyone have any questions, you mention in the chat. So can you please check the chat box? No, Anga, here is not any questions. People, you have any questions, you can communicate in the, Yes. you can communicate in the chat. You can also raise the hand. So we can discuss in our, voice. I think, Anga, we can move for the closures and Okay. not any questions. Okay. So soon this session will be uploaded in our YouTube channel. So be connected to our social media to get the all updates of the offers or any training sessions related. So thank you so much for joining us for the today's session. So now we'll wind up the session. Thank you, everyone. Thank you, everyone. See you soon in the next webinar. Thank you. Bye. Thank you. Bye.